Sure, let's begin. Now, when we talk about the next concept, we have something called as RNA. RNA is also called as ribonucleic acid. ठीक, अब जब हम राइबोन्यूक्लिक एसिड का बात करते हैं, फर्स्टली हमें ये बताया जाता है कि जो आरएनए होता है, these are mostly single stranded, meaning there are certain cases where they might be double stranded also, but then most of the time they are single stranded. ठीक है, इसके अलावा it states that their ribose sugar, they will have ribose sugar present in them instead of deoxyribose sugar that was seen in DNA. Apart from that, thymine in them is replaced by uracil. Perfect. ठीक है? Apart from that, it also gives us an information कि जो RNA होता है, अब क्योंकि वो single stranded है, it goes without saying that it will not follow Shergav's rule. ठीक है? राशि, what was Shergav's rule बेटा? फट से पेज पलट के देख ली क्या होता है. What is Shergav's rule? Total number of purine. Perfect. Shergav's rule was total number of purine will be equal to total number of pyrimidine. But this was applicable only if your nucleic acid is double stranded. Now here, if my nucleic acid is not double stranded, then in that case it is not possible. So likewise, अगर यहाँ पे हम देख रहे तो double stranded है ही नहीं, single stranded है. So by default it will not obey. Clear है? चले आगे. So हम बाबू मजे स्माइलिंग बैठो, स्ट्रेस में मत बैठो. चलो, इसके अलावा आरएनए जो होते हैं नेचर में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आरएनए दैट आर एग्जिस्टिंग. You have something called as genetic RNA and something called as non-genetic RNA. Soha, can you tell me what is genetic? What do you understand by the term genetic? ऐसे कोई सुना है शब्द जेनेटिक? नहीं? अनुष्का? Correct. When you get certain chemicals from your parents, you call those chemicals to be as genetics. ठीक है? So any chemical which gets inherited from one generation to next generation, we will call those chemicals to be as genetic material, right? Now, with that material, with that aspect, हमारे बॉडी में genetic material क्या है? तो हमारे बॉडी में RNA will become non-genetic. If a particular cell do not have DNA, then it will have RNA as genetic. आसान? सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था इन टोबैको मोसैक वायरस. वायरस के अंदर सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था. दो साइंटिस्ट थे, विच इज एच फ्रैंकल एंड कॉनराड. फ्रैंकल और कॉनराड नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार टोबैको मोसैक वायरस में ये नोटिस किया था कि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए था इंस्टेड ऑफ डीएनए. Alright, so that's where we came to a conclusion that RNA can be genetic also. It is not always non-genetic, but it can be genetic. अब non-genetic क्या हो जाएंगे? So non-genetic RNA तीन टाइप के होते हैं. You have something called as mRNA, you have rRNA, and you have something called as tRNA. Let us try to understand each of them one by one in detail. Very firstly, when we talk about mRNA, correct, which is nothing but messenger RNA.
जब हम मैसेंजर आरएनए का बात करते हैं, ये नाम हमको क्या बताता है? ये नाम हमको बता रहा है कि मैसेंजर आरएनए यानी कुछ मैसेज पास कर रही है। अब हम कभी भी शॉपिंग करने को जाते हैं, मॉल हुआ, डीमार्ट हुआ, तो जनरली कैसा होता है कि उस शॉपिंग के बिलिंग काउंटर पे हर एक प्रोडक्ट के पीछे जो बारकोड होता है उसको स्कैन किया जाता है। Do we understand what is the information behind that barcode? No. We don't know what is the information behind the barcode. उसको मैं स्क्रैच करूँ तो भी नहीं पता चलता। उस बारकोड को अगर मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे रख दूँ, तो वो कंप्यूटर बता देगा मुझको कि बारकोड के पीछे क्या है। कंप्यूटर स्क्रीन नहीं बताता, है ना? अलग से एक मशीन होता है जिसमें से लाल लाइट आता है, जिसके ऊपर वो रखता है और वो टीट साउंड gives us a confirmation that it has read and understood what is there as an information behind barcode. Yes or no, बेटा? जैसे वो मशीन उस बारकोड को स्कैन करता है, अब क्या हो रहा है? वो स्कैन करने के बाद जो इंफॉर्मेशन है उस बारकोड के अंदर, that gets reflected in your computer screen and then you behave accordingly. यहाँ पे इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है तो तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा, बराबर है? लाइकवाइज हमारे डीएनए और आरएनए के अंदर भी कुछ कोड्स होते हैं, स्पेसिफिकली डीएनए के अंदर भी कोड्स होते हैं व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एटीजीसी, वो एक रैंडम सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं, और जब वो इस रैंडम सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर कोडिंग एंड इंफॉर्मेशन। दीक्षा सीधी बैठ। They are responsible for coding and information for protein synthesis. Meaning, do we remember we spoke about primary structure of protein? What was that? A straight chain of amino acid. कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद लगेगा वो इंफॉर्मेशन था, वो इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर रहता है। अब ये इंफॉर्मेशन कोई नहीं रीड कर पाता, डीएनए के ऊपर ये इंफॉर्मेशन कोई भी रीड नहीं कर पाता। कौन रीड करेगा? खाली सो एमआरएनए जो है वो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर कॉपी कर लेता है। डीएनए इज ऑलवेज read from 3 prime to 5 prime. It is read from 3 prime to 5 prime. Are we clear up till here? If it is read from 3 prime to 5 prime and now my mRNA is copying that information, उसने कॉपी कर लिया। हम क्या बोल रहे थे? 3 प्राइम के सामने हमेशा क्या होगा? 5 प्राइम के सामने हमेशा क्या होगा? राइट? So if this is 3 prime to 5 prime, now this will be 5 prime to 3 prime. Are we clear? Yes. Any doubts? तो अगर मुझे mRNA रीड करना है तो मैं कैसे रीड करूंगा? 5 prime to 3 prime. DNA is read from 3 prime to 5 prime. RNA is read from 5 prime to 3 prime. स्मार्ट हो गए? आगे चले। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो mRNA होता है उसको रीड किया जाता है। रीड कौन करेगा? राइबोसोम्स। उस mRNA के ऊपर अब राइबोसोम्स लग जाते हैं। राइबोसोम्स देखते हैं, हाँ ओके, पहले क्या लगाना है? ग्लाइसिन लगाना है। टीआरएनए ग्लाइसिन लेके आना, तो टीआरएनए ग्लाइसिन लेके आता। फिर ऐसे देखता है, ओके अब उसको क्या चाहिए? मिथ्योनिन चाहिए। टीआरएनए मिथ्योनिन, अब टीआरएनए मिथ्योनिन लेके आ रहा है। That's why tRNA stands for transfer RNA. mRNA is copying the message or providing the message, whatever you convey it as. Whereas rRNA will be responsible to be acting as ribosomal RNA that is involved in synthesis of ribosomes. Sort है? ठीक है, चलो लिखते हैं उसके बारे में डिटेल से भी धीरे धीरे। So when we talk about messenger RNA, very firstly हमने क्या बोला? It tends to copy information from DNA on itself. Yes or no, beta? Yes. And this process is called as transcription. क्या बोलते हैं? Transcription. ये पूरा प्रोसेस हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, you call it as transcription. चलो आगे। This is the heaviest RNA. सबसे ज्यादा हैवी होगा अगर कोई mRNA या अगर कोई RNA तो वो mRNA होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इज समवेयर अराउंड 1,40,000
to 1,20,000 डाल्टन, इतना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, and it contributes to only 3 to 5% of total RNA. हमारे सेल में जो टोटल आरएनए है ना, उसका सिर्फ 3 से 5% mRNA होता है। मीनिंग mRNA इतना इंपॉर्टेंट आरएनए होने के बावजूद हमारे सेल में श्रीश सबसे कम अगर कोई आरएनए रहेगा तो दैट विल बी mRNA। अब क्लियर? चले आगे। mRNA is generally linear in shape. It has a linear structure, meaning कैसे रहेगा? ऐसा। और ये हो गए उसके ऊपर के न्यूक्लियोटाइड्स। It will be read from which end? This will be आसान। अब सुनो, mRNA ने डीएनए के ऊपर से कुछ इंफॉर्मेशन खुद पे कॉपी कर लिया। अब ये इंफॉर्मेशन कुड बी इन सीक्वेंस लाइक दिस। लेट्स से राइट, ये रैंडम कुछ सीक्वेंस है जो एमआरएनए के ऊपर कॉपी हो गया। ये एन क्या होगा उसका? ये एन क्या होगा? बराबर। अब इसमें क्या होता है, हमने बोला कि जो इंफॉर्मेशन वो कॉपी कर रहा है वो एक्चुअली अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। यस और तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस इसमें कहां दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा सर। वेयर इज द सीक्वेंस? बराबर। हर 3 न्यूक्लियोटाइड का गुच्छा will be coding for one amino acid. समझे? ये AUG codes for one amino acid, GCC codes for second, ये third, this will code for fourth, this will code for third, this will code fifth, this will code for कुछ ऐसे होता है। इतना छोटा होता है क्या? नहीं, बिसेट पॉलीपेप्टाइड होगा ना। So 150 से लेके 300 न्यूक्लियो अमीनो एसिड्स लग सकते हैं उसके अंदर। ठीक है? So long chain basically। याद है? क्लियर है? तो ये जो 3 का गुच्छा है ना, that is triplets of yes nucleotide। कैसे बता? triplets of nucleotide that code for one amino acid is called as codon। ठीक है बेटा? We call it as codon, जिसमें हमेशा एक कोडॉन ऐसा है जो स्टार्टिंग पोजीशन पे रहता है। Always it will present, it will be seen first place। मतलब शुरुआत ही इस कोडॉन से होता है। राइबोसोम्स को कैसे पता चल रहा है कि यहाँ से मुझे अभी प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करना है? जब वो इस कोडॉन को देख लेते हैं, वो बोलते हैं अच्छा ये स्टार्ट पॉइंट है। जैसे हम रूम के अंदर एंटर करते हैं तो हम दीवार से एंटर नहीं करते ना, हमको पता है कि एक छेद आएगा जिससे हमें अंदर घुसना है। And that छेद is always a door। खिड़की से कभी रूम में नहीं जाते हम, ठीक है, unless चोरी करना हो। ठीक है, generally it is a door that from where you tend to enter inside a room। Same, likewise over here, a particular mRNA protein synthesis will always start from a specific sequence called as start codon on mRNA, जो हमेशा first position पे रहता है। ये कोडॉन क्या है? ये कोडॉन है AUG, the one that is written over here, which will be from 5 prime to 3 prime। Are we clear बेटा? Yes or no? Yes। From 5 prime, from 5 prime to 3 prime, this will be the sequence। What exactly is this sequence coding for? So this sequence tends to code for an amino acid called as methionine। नाम तो सुने होंगे। Anyone knows what type of amino acid this is? It is a sulfur containing amino acid। Good Chirag। Now, ऐसा तो है नहीं कि डेढ़ हम अमीनो एसिड लगाते गए और कभी रुकेगा नहीं जिंदगी में। एक पॉइंट पे तो उसको रुकना ही पड़ेगा ना। फाट वो बैक टू बैक अमीनो एसिड्स लगा नहीं सकता। सो द पॉइंट, उसको कैसे पता चलेगा कि अब मुझे नहीं, मतलब अब और अमीनो एसिड नहीं लगाने हैं?
So you have something called as stop codon. Many a times also referred to as nonsense codon. Why do we call it as nonsense codon? Is because it does not code for any amino acids. Because it does not code for any amino acid. तो राइबोसोम जब ऐसे ऐसे आगे आगे जा रहा है ना, अब जब ये अमीनो एसिड आता है तो वो शॉर्ट कर देते हैं ये किस अमीनो एसिड के लिए, तो टीआरएनए को बुला नहीं पाता, तो टीआरएनए आएगा ही नहीं, टीआरएनए नहीं आया, अमीनो एसिड नहीं आया, राइबोसोम जो बोलता है भाग ये तो चला गया, मैं काम नहीं कर रहा अभी, थक गया, मुझे ये नहीं आता है. So there it leaves the entire polypeptide chain. अब राइबोसोम से निकल गया तो जाएगा किसके पास मॉडिफिकेशन के लिए? Sort it will go to स्टॉप कोडॉन्स कौन से सुनो, स्टॉप कोडॉन्स तीन टाइप के होते हैं, एक है UAA, UGA and UAG. These are three stop codons which can be existing as we can see over here. ठीक আছে, डोसका शिरले जाऊया पुढे. That's all with regarding your mRNA. Any doubts? चले आगे. Next that we have is your rRNA. rRNA is also called as ribosomal RNA. Now, what exactly is ribosomal RNA doing up? As we've mentioned it earlier. Synthesis of Yeah? synthesis of It is involved in synthesis of ribosomes. Ribosome will be membrane bound or not membrane bound. And it is found in which type in prokaryotic cells? Question सुना? पहले सुन लिए. जय माता दी हर जगह पे नहीं काम लगता. किस टाइप का राइबोसोम will be found in prokaryotic cell? And 70S can be broken down into? Correct. S stands for? And Swedberg unit represents? Sedimentation coefficient. Which is nothing but? Correct. And? Density and? Correct. Sit. So they are involved in ribosome synthesis. इसका molecular weight ना इससे कम होता है, इतना heavy नहीं होता वो. It is hardly 1 lakh to 80,000 daltons. Also, it tends to contribute 80% of total RNA. यानी हमारे सेल्स के अंदर जितना टोटल RNA है ना, उसका 80% तो राइबोसोमल RNA ही होते हैं. ठीक है, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई RNA है तो वो rRNA है, सबसे हेवी अगर कोई RNA है तो वो mRNA. इसका स्ट्रक्चर कैसे है? It is linear in structure but folded at certain sites. वो linear है लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो folded है. So this is linear but folded at certain sites. So with that respect, this will be what? 5 pyramid. This will be 8 pyramid. So ये कुछ ऐसे हो गया. अब यहाँ पे सामने सामने आ गए ना तो वो बेस पेयर बन जाएंगे. कुछ ऐसा. Are you clear up till here? Yes. Any doubts? Clear है? Sure. So that's RRNA. Simple. Next, we jump for understanding about tRNA. Also called as transfer RNA. क्या बोले हम ट्रांसफर RNA के बारे में? It is responsible for transfer of amino acid from
cytoplasm to protein factory. Amino acid to protein factory. Yes, Rajnandini, second last bench corner वाली. Protein factory मतलब हम क्या बात करें बेटा? Correct. Protein factory meaning we are talking about ribosomes. तो जो ये tRNA है वो साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड्स को उठा के राइबोसोम्स तक फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है? इसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सबसे कम होता है. इट इज द लाइटेस्ट tRNA, सबसे लाइटेस्ट, समवेयर अराउंड 25,000 to 30,000 डाल्टन ही उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिस वजह से इट कैन इजीली गेट सेल्युलाइज्ड इन वाटर. वाटर में आसानी से सेल्युलाइज हो जाता है, जिस वजह से उसको हम सेल्युबल आरएनए भी कहते हैं. समझे क्या नहीं समझे? इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है, जिस वजह से वो पानी के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाता है. दस द टर्म कम्स एज एटीपी बचा रही है, व्रत है तो नाराज हो, फिर एटीपी वापरो. ठीक, चलो नेक्स्ट. वो बता रहे हैं कि ये जो होता है ना, इट कंट्रीब्यूट्स टू समवेयर अराउंड 12 to 15% of total RNA in our cells. हमारे सेल्स के अंदर जो टोटल RNA होते हैं उनमें से 12 से 15% RNA जो रहेंगे वो tRNA रहेंगे. ठीक है, 3 से 5% क्या होगा? और सबसे ज्यादा कितना है? Which is how much? 8%. This also have something called as anticodon, which are complementary to codon. They are complementary to codon, and thus they are also called as nodoc. ठीक है, we can also call them as nodoc. चलिए आगे सुनो क्या चीज है. एंटीकोडॉन क्या होता है वो बताता हूँ, पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसके पास ना दो टाइप के स्ट्रक्चर होंगे. It has two types of structure. एक होता है जिसे हम कहते हैं हेयर पिन लूप, और एक होता है जिसे कहते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर. ठीक है, हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. कुछ ऐसा. This will be 5 prime, this will be 3 prime, and here you have something like this. विपल बोल रहे सर इधर कहाँ हेयर पिन दिख रहा है आपको, कौन से एंगल से? हेयर पिन जो होता है वो कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसा होता है ना. मुझको ही नहीं पता, तुझे पता होना चाहिए. हेयर पिन ऐसा होता है, कुछ कुछ वैसा दिख रहा है. ठीक है, इसलिए अथर्व बोलता है नहीं, कुछ बनता ही है फैंसी आधुनिक है. अब ये जो 5 प्राइम एंड होता है इसका, that 5 prime end always begin with G. It will always begin with G. G is what? Whereas 3 prime end will always end with CCA. It will end with CCA. और नीचे ये जो अपने को दिख रहा है ना, this is nothing but anticodon. It is nothing but anticodon. अब क्या होते हैं anticodon? समझो. हमारा स्टार्ट कोडॉन क्या है? AUG. We have AUG on our mRNA. AUG. A के सामने क्या आएगा? U. RNA है ना, बस T नहीं रहेगा, क्या रहेगा? U. A के सामने U के सामने और G के सामने C. तो क्या सीक्वेंस हो गया? UAC. tRNA के ऊपर होगा UAC. tRNA तो लेकर आ गया कुछ. अब राइबोसोम को चेक करना होगा ना कि जो सही वाला अमीनो एसिड लाया है या गलत लाया है. अंधा भरोसा तो किसी पे नहीं करता हमारा बॉडी, तो पहले चेक करेगा कि जो सही वाला अमीनो एसिड लाया है या नहीं. तो वो ऐसे लगा के देखता है UAC, खचा करेक्ट लाया है. अब वो उसके अंदर से अमीनो एसिड ले लेगा. ठीक है, फिर अमीनो एसिड को उसने पकड़ के बैठा है.
अब वो देख रहा है दूसरा क्या है, वो बोला एलेनाइन, बोलता है टीआरएनए एलेनाइन। अब एलेनाइन का वो देखेगा एंड मोड नीड, करेक्ट है, ठीक है। अब वो दूसरा अमीनो एसिड लेगा, तो दूसरा अमीनो एसिड लेते समय क्या करता है, वो बोला बराबर अमीनो एसिड लाया, पुराना वाला अमीनो एसिड नए वाले अमीनो एसिड के साथ जोड़ देगा और टीआरएनए को भगा देगा। फिर तीसरा देखता है, ऐसे करते 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 प्रोटीन बनाएगा, समझे। तो एंटीकोडॉन का क्या यूज हुआ बेटा, दे आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री टू योर कोडॉन, और क्योंकि वो कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री है यानी ऑपोजिट हुआ ना, दैट्स व्हाई यू आल्सो मेंशन इट एज नोडॉक। उल्टा देखो, कोडॉन नोडॉक, ठीक है। શું થયું, काय झालं, वेरी गुड। आगे चले, उसको समझाने का मतलब फिर भी मार्क्स नहीं लाती है, नाम भी डुबाती है। क्या नहीं समझा, एंटीकोडॉन जो है दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू योर कोडॉन, मतलब वो एयूजी है ना। तो अब जब टीआरएनए अगर कोई अमीनो एसिड लेके आ रहा है, ठीक है, ये कोडॉन हो गए ऐसे सपोज, अब टीआरएनए एक अमीनो एसिड लेके आया है, हमें कैसे पता कि वो करेक्ट वाला अमीनो एसिड ही लाया है, तो राइबोसोम देखता है, अगर उसके पास यूएसी है ना, मतलब वो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हुए ना, मतलब करेक्ट वाला अमीनो एसिड लाया है। अगर सपोज जीएसी होता है यहाँ पे जीएसी, तो वो बाइंड करता क्या, नहीं करता ना, ये वाला बाइंड भी नहीं करता, बाकी तो एक बार कर भी ले लेते, तो दैन इन दैट केस क्या हो जाएगा, वो इसके पास से अमीनो एसिड नहीं लेगा, राइबोसोम बोलेगा तू नहीं दूसरा वाला करते, समझे। इस बार मार्क्स नहीं है को। चलो नेक्स्ट, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोवर लीफ जैसा, सभी लीफ है, हाँ कुछ ऐसा ही होता है क्लोवर लीफ। क्लोव पता है, क्लोव लॉन्ग लॉन्ग, तुम्हारा क्या मिलता माइक में, हाँ तेज से, क्या you call it as club, you don't call it as clover, you call it as club. You don't play cards now, you have no idea. चलो बस enough मस्ती। This will be what, which end, this will be, याद रखना 5 हमेशा छोटा होता है, 3 हमेशा बड़ा होता है। So हम 5 प्राइम will start with, हाँ really, but I taught it just 5 minutes back. You were absent yesterday na, 5 minutes back you were present, 5 minutes back, 6 minutes back I've taught you. चमत्कार, where are you Sphinx? I guess brain also forgot, I don't know. It will start with and 3 prime will have CCA. Are we clear up till here? Everyone. अब इसमें ना एक गुफक होता है, काफी कॉमनली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, तुमको ऑप्शन में दिया जाता है, मतलब वो पूछते हैं कि भाई 3 प्राइम एंड जो होता है टीआरएनए का, वो किस चीज से, किस सीक्वेंस से एंड करता है। तुमको दिया जाएगा कुछ ऐसे, what will we mark? B. Will mark B. अंध देख के सर CCA एंड होता है 3 प्राइम एंड, CCA आंसर इज B. Why A? हम रीड ऐसा करते हैं ना, समझे। हाँ, तो ये ट्रिक क्वेश्चन कहा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, जिसमें थोड़ा आपका लगाना पड़ता है, तो दिमाग शांत रखने का। करते क्या है, तेरे को पहली बार देख रहा है ऐसा लग रहा है, नाम बोल। हाँ नहीं देखा है, टॉपर आई ना, हाँ गलती से आई या पढ़ के आई है। Are we clear up till here? This side will be what? This is anticod, क्या होता है, anticodon. This arm has anticodon, that's why you call this as anticodon arm. इस arm पे you have uracil. नया क्या बात है सर, आरएनए है तो यूरासिल तो हो गई, नहीं, इधर अलग टाइप का यूरासिल होता है, which is
हाइड्रोक्सी यूरिडिन, यानी नॉर्मल यूरिडिन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा है, सो बन गया डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन। और ये यूनिक टाइप का यहाँ पर है, जिस वजह से इस आम को हम नाम देते हैं DHU आम। पढ़ते हैं DHU आम। जैसे अगर कोई चिंटू होता है हाइट पे, तो हम नहीं उसका नाम चिंटू डाल देते हैं। कोई लंबा रहेगा तो उसका नाम लंबू डाल देते हैं, है ना। कोई बहुत बात करता है तो उसका हाँ मतलब चोमू फालतू बात करने वाले थे, हाँ ठीक है। सो लाइक आर वी गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि जैसे किसी के अंदर कुछ विशेषता रहती है ना, तो हम उसको वो नाम दे देते हैं, पेट नेम जैसा। वैसे ही इस आम के अंदर यू हैव यूरिडिन, बट देन ये यूरिडिन ना थोड़ा अलग किस्म का यूरिडिन है, तो उसका नाम उसके हिसाब से डाल दिया है। वैसे ही बाजू वाला आम जो एक और अपने को दिख रहा है, दिस आम दैट वी सी, it has a unique sequence of nucleotide which is T। हैला RNA में तो T होता नहीं, उसमें यू ही होता है। ये एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है ना थोड़ा सा ये, दिस इज एन एक्सेप्शन सर, केमिस्ट्री इज इनफ फॉर एक्सेप्शन सर, बायोमोलिक्यूल्स नहीं, दिस इज द ओनली वन, ठीक है। सिर्फ क्लोवर लीफ में ही टी होता है, बाकी कोई भी आरएनए में टी कभी नहीं होता, ठीक है। अब इस आम में पहले टी होता है, फिर साई होता है, फिर सी होता है, जिस वजह से इस आम का नाम डाल दिया टी साई सी आम। साई साई सर मैथ्स आ गया, ये तो कहाँ घुस रहे हैं आप, कुछ देर पहले केमिस्ट्री थे, अभी मैथ्स में घुस रहे हैं। Psi over here stands for pseudo-uridine. बस चुप। It stands for pseudo-uridine. Now what is pseudo-uridine? Pseudo meaning false. Uridine is uridine. False uridine. मतलब क्या झूठ बोलता है सर? नहीं. False uridine over here meaning though the structure is of uridine, it does not act as uridine. And that's why you call it as pseudo-uridine. तो सर बाजू का सी क्यों डाले? अब बाजू में पड़ा था तो ले लिया साथ में, तो टी साई सी। शॉर्ट आहे, कोई डाउट आहे? इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इस टीआरएस के अंदर अमीनो एसिड्स कहाँ पे लगते हैं? क्या लिखेंगे आंसर? Where do you think amino acid will get attached? अमीनो एसिड बेटा, मैं बाजू में ड्रॉ भी करके दिखाया हुआ हूँ, नहीं इरेज कर दिया। किधर अटैच होगा? अमीनो एसिड्स किधर अटैच होंगे? कौन से एंड पे? 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड पे अटैच होंगे, ठीक है, समझे? एनी डाउट्स? सारे टीआरएनए क्लियर है और सारे आरएनए क्लियर है, पूरा सब कुछ सॉर्ट। फन फैक्ट, ये पूरा चीज अपने को एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, बट 12th में इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, बिकॉज़ 12th में यू हैव एन एंटायर चैप्टर ऑन जेनेटिक्स। सो व्हेन यू हैव एन एंटायर चैप्टर ऑन जेनेटिक्स, you all will be taught बेटा आराम से एकदम इतने भी कंफर्टेबल मत हो जाओ। 12th में you have an entire chapter जहाँ पे mRNA कैसे बनता है, उससे प्रोटीन कैसे बनता है, डीएनए कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये सब डिटेल में हमें पढ़ना है। अब उसमें अगर हमको पता ही नहीं कि आरएनए क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे काम कर रहे, तो वो चीज हमको समझेगा ही नहीं, इसलिए हम अभी पढ़ लिए उसको। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स? हाँ बोलिए। You never know. काही सांगू नाही शकत। बायोमोलिक्यूल का टेस्ट कहाँ है तुमको? जब होगा तो बताया जाएगा, पूरा डिस्कशन रिकॉर्ड करेंगे। This Chentu arm that we see over here, ठीक है, is called as variable arm। इसका काम क्या है? कुछ नहीं, it is vestigial। तो क्यों है? अरे ऊपर वाले ने दिया रखो, ठीक है, it's just there, ठीक।
Now, for this types of questions, where first it is asking how many cytosine is seen in a DNA if it has 30% adenine. Did everyone get answer? Yes. Okay. Let's check how many of you all got correct answer. हमें पता है कि पूरे डीएनए में टोटल 100% होंगे न्यूक्लियोटाइड्स which is A plus T plus G plus C will be equal to 100, right? जिसमें we know that A and T are pairs, तो सेम हो गया. हमें A दिया हुआ है, so it is 2A plus मुझे फाइंड क्या करना है C. I know G and C is same, so I make it as which is 100. That brings up to somewhere around A plus C equals to 50. अगर ऐसे नहीं समझ रहे सिंपल रखो. चलो 30 है 2 जा 60 plus 2C equals to 100. So that is 2C equals to 40. So C equals to 20. So how much percent of C is seen? 20%. Are we clear? Yes or no? How many of you got correct answer? Okay. Next. बाकी लोगों को क्या आंसर आया? 70. पता ही था. तेरे डीएनए में सिर्फ एडेनाइन और साइटोसाइन नहीं और कुछ नहीं है. चल दूसरा next. What is the length of DNA if it has 30 nucleotides? 30 nucleotides making it as 15 base pairs, right? So 15 base pair will be multiplied by 0.34 or I can multiply it by 3.4. You multiply that and get your answer. जो भी आया 640 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स का हमारे पास डीएनए का लेंथ है. कितने न्यूक्लियोटाइड्स है वो मुझे चाहिए. बराबर. हमें पता है कि एक टर्न में इन वन टर्न इज एक one turn has 34 angstrom units. So I make it as one turn may I have 10 base pair which is of 34 angstrom, right? So 640 angstrom में कितने base pairs हो जाएंगे ये मुझे जानना है. बराबर है. So I will do what? 640 multiplied by 10 upon 34. Ones are. Chalo, I would have rather made it as easy as 680. So then we have, yeah, 2s are, zeros are, that is 200, correct? I have 200 base pairs ना. मैंने nucleotide पूछा 400. आसान समझे. शॉर्ट